हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 5 रिट्स के बारे में। तो चलिए ये 5 रिट्स क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, habeas corpus. Habeas corpus is a Latin term which literally means you may have the body. The writ is issued in form of an order calling upon a person by whom another person is detained to bring that person before the court and to let the court know by what authority he has detained that person. If the cause shown discloses that detained person has been detained illegally, the court will order that he be released. Thus, the main object of the writ is to give quick and immediate remedy to a person who is unlawfully detained by the person, whether in prison or private custody. मतलब हैबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी को यहाँ में पेश किया जाए। ये आदेश के रूप में जारी किया गया है जिसमें किसी व्यक्ति से कहा जाता है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को बंदी बना रखा है कि वो उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करे और ये बताए कि उसने उस व्यक्ति को क्यों बंदी बना रखा है। यदि प्रस्तुत कारण ये दर्शाता है कि उस बंदे को अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो कोर्ट आदेश देती है कि उसे रिहा किया जाए। इस प्रकार इस आदेश का मुख्य उद्देश्य ये है कि एक व्यक्ति को जो अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है उसे त्वरित और तत्काल राहत प्रदान की जा सके, चाहे वो जेल में हो या किसी निजी बंदी गृह में। नंबर 2, mandamus. The word mandamus means the order. The writ of mandamus is done an order by a superior court commanding a person or a public authority, including the government and public corporation, to do or forbear to do something in the nature of public duty, or in certain cases of a statutory duty. For instance, a licensing officer is under a duty to issue a license to an applicant who fulfills all the conditions laid down for the issue of such license. But despite the fulfillment of such conditions, if the officer or the authority concerned refuses or fails to issue the license, the aggrieved person has a right to seek the remedy through a writ of mandamus. मतलब मैंडेमस का अर्थ है आदेश। मैंडेमस का आदेश एक उच्च न्यायालय द्वारा दिया जाता है जो किसी व्यक्ति या सार्वजनिक प्राधिकरण को किसी सार्वजनिक कर्तव्य या कुछ मामलों में वैधानिक कर्तव्य के तहत कुछ करने या ना करने का आदेश देता है, जिसमें मतलब सरकार और सार्वजनिक निगम भी शामिल है। उदाहरण स्वरूप एक लाइसेंस अधिकारी के पास उस आवेदक को लाइसेंस जारी करने का कर्तव्य होता है जो सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, लेकिन यदि इन शर्तों को पूरा करने के बावजूद अधिकारी या संबंधित प्राधिकरण लाइसेंस जारी करने से मना कर देता है या विफल रहता है तो प्रभावित व्यक्ति के पास मैंडेमस के माध्यम से मतलब प्राप्त करने का अधिकार होता है। Number 3, prohibition. A writ of prohibition is issued primarily to prevent an inferior court or tribunal from exceeding its jurisdiction or acting contrary to the rules of natural justice. It is issued by a superior courts to inferior courts for the purpose of preventing inferior courts from usurping a jurisdiction with which it was not legally vested, or in other words, to compel inferior courts to keep within the limits of their jurisdiction. Thus, the writ is issued in both cases where there is excess of jurisdiction and where there is absence of jurisdiction. मतलब इसका मतलब है कि प्रतिबंध आदेश मुख्य रूप से इस उद्देश्य से जारी किया गया है कि एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण अपनी अधिकारिता से अधिक कार्य ना करे या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य ना करे। ये
उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है ताकि अधीनस्थ न्यायालयों को ऐसी अधिकारिता का उपयोग करने से रोका जा सके जो उन्हें कानूनी रूप से प्राप्त नहीं है, या दूसरे शब्द में ये अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर रहने के लिए बाध्य करने के लिए जारी किया जाता है। इस प्रकार ये आदेश दोनों स्थितियों में जारी किया गया है, जब अधिकारिता का अत्यधिक उपयोग किया जाता है और जब अधिकारिता का अभाव होता है। Number 4. Certiorari. A writ of certiorari is issued by a superior court, Supreme Court and High Courts to an inferior court or body exercising judicial or quasi-judicial functions to remove a suit from such inferior court or body and adjudicate upon the validity of the proceedings or body exercising judicial or quasi-judicial functions. It may be used before the trial to prevent an excess or abuse of jurisdiction and remove the case for trial to higher court. It is invoked also after trial to quash an order which has been made without jurisdiction or in violation of the rules of natural justice. Certiorari का मतलब है ये एक आदेश है, मतलब एक उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय का द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या ऐसे संस्था को जारी किया जाता है जो न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य कर रही हो, ताकि ऐसे अधीनस्थ न्यायालय या संस्था से मुकदमे को हटाकर उस प्रक्रिया या संस्था की वैधता पर निर्णय लिया जा सके। इसे न्यायालय या उच्च न्यायालय में मुकदमे को स्थानांतरित करने के लिए अधिकारिता के अत्यधिक प्रयोग या दुरुपयोग को रोकने के लिए परीक्षण से पहले भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आदेश परीक्षण के बाद भी उस आदेश को रद्द करने के लिए लागू किया जा सकता है जो बिना अधिकारिता के ये प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करके दिया गया हो। Number 5. Quo warranto. The word quo warranto means what is your authority. By this writ, a holder of an office is called upon to show to the court under what authority he holds the office. The object of the writ of quo warranto is to prevent a person to hold an office which he is not legally entitled to hold. If the inquiry leads to the finding that the holder of the office has no valid title to it, the court may pass an order preventing the holder to continue in office and may also declare the office vacant. If the holder of a public office was initially disqualified to hold that office, the writ of quo warranto would not be issued if at a subsequent stage that disqualification was removed, and after the removal of the disqualification, the incumbent concerned could have been appointed on the same post. The doctrine is that in cases where the initial disqualification is removed, it would be open to the authorities concerned to appoint the same person immediately, even if the court grants the writ of quo warranto as desired by the petitioner. The general principle is that the court would not pass any decree which becomes futile. मतलब quo warranto शब्द का अर्थ है तुम्हारी अधिकारिता कहाँ है। इस आदेश द्वारा किसी पद के धारक से ये पूछा जाता है कि वो किस अधिकार के तहत उस पद पर अधिकार प्राप्त कर रहा है। quo warranto के आदेश का उद्देश्य ये है कि किसी व्यक्ति को ऐसा पद रखने से रोका जाए जिसके लिए वो कानूनी रूप से योग्य नहीं है। यदि जांच के परिणाम स्वरूप ये पाया जाता है कि पद धारक के पास उस पद का वैध अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को पद पर बने रहने से रोकने का आदेश दे सकता है और पद को रिक्त भी घोषित कर सकता है। यदि किसी सार्वजनिक पद के धारक को प्रारंभ में उस पद को धारण करने के लिए
अयोग्य माना गया था, तो यदि बाद में उस अयोग्यता को हटा दिया गया और अयोग्यता हटने के बाद संबंधित व्यक्ति को उसी पद पर नियुक्त किया जा सकता था, तो को वारंटो का आदेश जारी नहीं किया जाएगा। ये सिद्धांत है कि जिन मामलों में प्रारंभिक अयोग्यता हटा दी जाती है, उन मामलों में संबंधित प्राधिकरणों को उसी व्यक्ति को तुरंत नियुक्त करने का अधिकार होता है, भले ही न्यायालय याचिकाकर्ता द्वारा इच्छित को वारंटो आदेश जारी कर दे। सामान्य सिद्धांत ये है कि न्यायालय ऐसा कोई आदेश नहीं देगा जो निरर्थक है। तो दोस्तों, यही टिक थी 5 रीट्स के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।